Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss file system in Android. Okay, we have discussed in the starting of this chapter that data persistency is one of the important thing to learn and to implement while developing application. It is quite often that our application is executing on the device and there is some data related to our application which is to be stored permanently on the device, so that when our application executes next time, it can access the data or it can retrieve the data which it has used, generate or store in last execution. Okay, such data can be some score of game, a level of game, basic information like name or the preference of our user. Okay, such data can be needed to access or retrieve the next time when application is executing. So to store the data permanently on the device on which our application is executing, there are several mechanisms available. Shared preference is one of them, file system is one of them, SQLite database or the database connectivity or database management is yet another mechanism to store data permanently. The famous and the most popular mechanism for storing the data permanently is database. But many times the data which we are going to store is a small chunk of data or small amount of information which we need to store permanently. Now for that small amount of information, if we build a database and if we create table, then the information will be small and the management of this database will be a large process. So at that time we can either select shared preferences or we can go with the mechanism that we have learned in C, C++, Java, PHP, etc. That is file handling. Okay, and here we are implementing Java programming language. The code of our application is written in core Java language. So the same Java IO package, java.io, IO for input output package, can also be used here for performing such operations like read, write, etc. And if you remember, in Java there are four abstract base classes: reader, writer, then input stream and output stream. Java provides the mechanism of writing and reading to different type of streams. The mechanism remains same. Okay, mechanism of reading and writing remains same, whatever device we have connected for as a source for input or as a destination to write data. Okay, basically there are two type of streams in Java: character stream and byte stream. Okay, and all these four classes are divided as between both these categories of stream. For example, reader and writer are related to character stream, whereas input stream and output stream are related to byte streams. So same functionality, same features, same classes can also be used in Android as we are doing programming in Java language. Okay, working with file system. Let us start. Though very less used, file system may prove sometimes more useful than shared preferences and database. We can use the same traditional file handling mechanism of Java to read and write to the file. तो कुछ केस ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस और डेटाबेस से ज़्यादा आपको उपयोगी और उचित लगेगा फाइल हैंडलिंग का मैकेनिज़्म. तो अगर आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन का डेटा फाइल में भी, मतलब कि जिस डिवाइस पे आपकी एप्लीकेशन रन होती है उस डिवाइस में कुछ मेमोरी होती है, उस मेमोरी में आप कुछ फाइल बना के वहाँ पे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो. ये भी पॉसिबल है. File management tools. The same java.io package, and there are many classes available. One of that class is this file class. Okay, can be used. In addition, there are special methods of application context which provides to be useful. देखो यहाँ पे java.io पैकेज और उसके अंदर आए हुए क्लास को तो हम यूज़ कर ही सकते हैं. एडिशनली जो ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है
ये भी हमें कुछ ऐसी मेथड्स प्रोवाइड करता है कि जो हमें फाइल हैंडलिंग के वक्त उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे कि डिलीट फाइल, फाइल लिस्ट। ओके, डिलीट फाइल के ज़रिए इट इज़ यूज टू रिमूव फाइल्स क्रिएटेड बाय द करंट एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन के द्वारा, हमारी एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट हो रही है और उसने जो फाइल्स को क्रिएट किया है, उन फाइल्स को हम इस मेथड के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसिफिक फाइल को। उसी तरह से फाइल लिस्ट, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग एरे दैट इंक्लूड्स ऑल द फाइल्स क्रिएटेड बाय द करंट एप्लीकेशन। हमारी एक एप्लीकेशन के ज़रिए जितनी भी फाइल्स क्रिएट हुई है उन सब का लिस्ट चाहिए हमें, तो इस मेथड के द्वारा हम वो लिस्ट रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक फोल्डर्स। आपकी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होती है डिवाइस में, तो डिवाइस का जो मेमोरी होता है, ओके, उसमें भी एक आपकी एप्लीकेशन के लिए अलग से फोल्डर बनता है और फाइल्स भी कुछ बनती है। मतलब कि फाइल सिस्टम होता ही है ऑलरेडी। जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो कुछ फाइल्स फोल्डर्स उसके लिए बनते हैं। तो अपनी एप्लीकेशन से जुड़े जो फोल्डर्स है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। While storing the application specific files, we have two options to store them. अब जब हम अपनी एप्लीकेशन से जुड़ी फाइल्स के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या, या तो हम उसको डिवाइस की इंटरनल मेमोरी, जिसको हम इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और अदरवाइज वी कैन यूज़ द एक्सटर्नल स्टोरेज, मतलब कि डिवाइस की जो एक्सटर्नल मेमोरी है, SD कार्ड, उसमें भी हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल। अगर हम अपनी एप्लीकेशन से डिवाइस में कोई फाइल बनाना चाहते हैं, फाइल बना के उसमें राइट करना चाहते हैं, तो ये फाइल कहाँ पे बनाए, ये भी एक प्रश्न है सबसे पहले जो उपस्थित होगा। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास ये दो ऑप्शन, मतलब कि दो जगह है, आइदर हम उसको इंटरनल स्टोरेज में या एक्सटर्नल स्टोरेज में बना सकते हैं। अब देखो, एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया सच एज SD कार्ड ऑन विच नो सिक्योरिटी कैन बी इम्पोज। अगर हम SD कार्ड पे फाइल को स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम कुछ सिक्योरिटी इम्पोज नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप फाइल को SD कार्ड में स्टोर करना चाहते हो, सो एट दैट टाइम यू नीड परमिशन, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज ऑन विच सिक्योरिटी कैन बी इम्पोज। आप अगर इंटरनल स्टोरेज में फाइल को स्टोर करते हो, क्रिएट करते हो, at that time you can apply security on that file. Methods of application context, बहुत सी मेथड्स है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में फाइल मैनेजमेंट से जुड़ी कि जो हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, हमें यूज़फुल हो सकती है। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, देयर आर टू मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट टू रिट्रीव अ रेफरेंस टू करस्पॉन्डिंग स्टोरेज। दीज मेथड्स आर, अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारी एप्लीकेशन डिवाइस में इंस्टॉल होती है तो वहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स बनते हैं हमारी एप्लीकेशन के, तो वो फ़ोल्डर्स वेरी कॉमन होंगे, तो उनमें से कुछ फ़ोल्डर्स के नाम भी प्री डिफाइन होंगे। तो हमारी एप्लीकेशन से जुड़े कुछ फ़ोल्डर या डिवाइस के कॉमन फ़ोल्डर या डिवाइस के पब्लिक फ़ोल्डर्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, हमारी एप्लीकेशन का एप्लीकेशन कंटेक्स्ट मेथड्स प्रोवाइड करता है, जो कि इस तरह से है। गेट डायरेक्टरी, इट रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग अ पाथ टू द इंटरनल स्टोरेज। अब देखो, ये गेट डायरेक्टरी मेथड आपको इंटरनल स्टोरेज का जो फाइल सिस्टम है उसका पाथ रिटर्न करेगी। तो अगर आपको कोई फाइल बनानी है सपोज, तो उस फाइल को बनाते वक्त आपके दिमाग में एक तो नाम होगा कि फ़ाइल का नाम क्या रखना है, और अगर उस फाइल को आप इंटरनल स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हो तो आपको उस फाइल का पाथ किस तरह से देना चाहिए, ये मेथड पहले कॉल करने की, गेट डायरेक्टरी, फिर उसमें कॉन्केट करने का आपकी फ़ाइल का नेम। ओके, उसी तरह से दूसरी मेथड है गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरी, इट रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग अ पाथ टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्टोरेज। आपकी एप्लीकेशन से जुड़ा, सपोज कि आपकी एप्लीकेशन SD कार्ड में इंस्टॉल हुई है, तो आपकी एप्लीकेशन से जुड़ा SD कार्ड में जो फोल्डर होगा उसका रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो आपके पास ये मेथड अवेलेबल है, गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरी। ओके, ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे।
Both of these methods accept a string parameter that can be used to specify the subdirectory into which we want to place our files. ये दोनों ही मेथड में आपको पास करना है एक स्ट्रिंग जो कि उस स्पेसिफिक जगह पे आया हुआ फोल्डर का नाम होगा, ओके, सब डायरेक्टरी का नाम होगा. ऑल द फाइल्स स्टोर्ड इन दिस डायरेक्टरीज विल बी इरेज्ड व्हेन आवर एप्लीकेशन इज अनइंस्टॉल्ड. देखो ये दोनों ही जो जगह है, ओके, गेट डायरेक्टरी और गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरी, ये दोनों ही आपको क्या देगी, आपकी एप्लीकेशन से जुड़ा पाथ फोल्डर का, ओके, आइदर इन इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज. तो जब आपकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो ये फोल्डर्स भी रिमूव किए जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. क्रिएटिंग प्राइवेट एप्लीकेशन फाइल्स. To perform any operations that is read or write on a file, we need to first open a file. That is very basic concept of file management. If you remember in C, C++, Java, in all these programming languages, whenever we have learned file management, it was the basic thing to perform any type of operation, read, write or append. First of all, we should open the file. If we are opening a file for writing, a new file will be created if the file does not exist. And if the file already exists with the name that you have passed, no new file will be created as it already exists, but the file will be overwritten. File will be overwritten. Whatever you write will be overwritten to the file, means the contents which were already in the file will be erased and the new contents will be written. Okay. We can change the mode of this file opening. That is, if we want to open file for writing, but we do not want to erase or remove the previous data, then we can open the file for append mode. Open the file for appending, and for that we need to mention the mode as append. We can append to the file by using the mode append flags while opening. Android provides two methods for opening a file. Either you can use open file input or open file output. If you want to open a file for performing write operations, you need to open the call the method open file output. And if you are opening the file for reading purpose, then you need to call open file input method. Okay, and both these methods return an appropriate object of stream, byte stream class. Okay, see the code snippet given here. A string variable is initialized to a name tempfile.tmp. Then create a new output file stream that private to this application. File output stream is equal to open file output file name context.mode private. तो यहाँ पे हमने एक फ़ाइल को राइट करने के लिए ओपन किया है, उसका नाम tempfile.tmp है, और ये जो फाइल है वो हमारी एप्लीकेशन की प्राइवेट फाइल रहेगी. उसी तरह से क्रिएट अ न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम को रिट्रीव करना है तो ओपन फाइल फॉर इनपुट और फाइल नेम एज ए आर्ग्यूमेंट. These methods support only files in current application folder. See, it is very important to note that अगर आप इन दोनों में से कोई भी मेथड का यूज़ करते हो, ओपन फाइल आउटपुट या ओपन फाइल इनपुट, ये दोनों ही मेथड आपकी एप्लीकेशन से जुड़े फोल्डर में आई हुई फाइल्स को ऑपरेट करने में ही यूज़ होती है. दिस मेथड सपोर्ट ओनली फाइल्स इन करंट एप्लीकेशन फोल्डर. फाइल्स क्रिएटेड यूजिंग ओपन फाइल आउटपुट आर प्राइवेट टू द कॉलिंग एप्लीकेशन. मतलब कि जो फाइल को आपने ओपन फाइल आउटपुट के द्वारा क्रिएट किया है, वो फाइल्स आपकी एप्लीकेशन की प्राइवेट फाइल्स बन जाएगी, उसको दूसरी एप्लीकेशंस में एक्सेस नहीं किया जा सकता. वी कैन शेयर फाइल्स यूजिंग द फ्लेक्स. अगर आपको लगता है कि आपकी जो फाइल है जो आपने बनाई है उसमें जो भी डेटा रखा है आपने, वो किसी और एप्लीकेशन से आप शेयर करना चाहते हो, रीड ओनली या मॉडिफाई करने का भी राइट आप अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो. तो इन सच सिनारियोज यू हैव टू मेंशन द फ्लैग्स. वी कैन शेयर फाइल्स यूजिंग द फ्लैग्स मोड वर्ड राइटेबल. मतलब कि अगर ये मोड आप रखते हो तो दूसरी एप्लीकेशन में भी आपकी
फाइल को एक्सेस किया जा सकता है और उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, जैसा कि हमने शेयर्ड प्रेफरेंस में भी डिस्कस किया था। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ाइल दूसरी एप्लीकेशन के द्वारा रीड हो सके लेकिन चेंजेस नहीं कर सकनी चाहिए, एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन दी mod word readable. Okay, so these both modes are available to share the application's private files or the files created by the application to some another application. Finding the location of the file, we can find the location of the files of our application. अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का पाथ क्या है, हमारी एप्लीकेशन की फाइल्स का फोल्डर जो है उसका पाथ क्या है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, गेट फाइल्स डायरेक्टरी मेथड कॉल करेंगे, इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल एंड देन स्ट्रिंग एब्सोल्यूट पाथ इज इक्वल टू फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ। ओके, अब ये जो फाइल है वो तो एक फाइल ऑब्जेक्ट है जिसमें इस फोल्डर का रेफरेंस होगा हमारी एप्लीकेशन के फोल्डर का, उससे जुड़ा पाथ हमें रिट्रीव करना है। तो ये फाइल क्लास जो है वो स्टैंडर्ड जावा आईओ लाइब्रेरी का पाथ है, क्लास है। उसकी बहुत सारी मेथड्स है कि जो आपने जावा पढ़ते वक्त सीखी होगी, पढ़ी होगी। ऐसी ही एक मेथड है गेट एब्सोल्यूट पाथ, इट रिटर्न्स एब्सोल्यूट पाथ ऑफ दैट रेफरेंस और द फोल्डर। एप्लीकेशन फाइल कैश, Android provides mechanism to store temporary files for our application. It provides managed internal cache and unmanaged external cache. See, Android ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एप्लीकेशन से जुड़ी टेम्पररी फाइल्स को भी सेव करने का, स्टोर करने का माध्यम आपको देता है। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में हम इसको कैश मेमोरी कहते हैं, टू स्टोर दी फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड currently used data. Okay, it provides a managed internal cache. Okay, तो दो तरह की कैश मेमोरी भी है यहाँ पे, एक इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल स्टोरेज में, मतलब कि डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज में आया हुआ कैश, और दूसरा जो कैश मेमोरी है वो कहाँ पे है, डिवाइस के एक्सटर्नल स्टोरेज, मतलब कि SD कार्ड में आया हुआ कैश जो अनमैनेज्ड है। ओके, गेट कैश डायरेक्टरी for managed internal cache and get external cache directory for unmanaged external cache। तो ये दोनों ही तरह का कैश यहाँ पे कैश मेमोरी अवेलेबल है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में, गेट कैश डायरेक्टरी एंड गेट एक्सटर्नल कैश डायरेक्टरी। ये दोनों ही मेथड्स रिटर्न करेंगे आपको फाइल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। फाइल स्टोर्ड इन दिस मैनर विल बी इरेस्ड व्हेन द एप्लीकेशन इज अनइंस्टॉल्ड। यस, ये एप्लीकेशन से जुड़ा फोल्डर है, एप्लीकेशन से जुड़ी फाइल्स है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होती है, यहाँ पे बनी हुई आपकी एप्लीकेशन की फाइल्स भी रिमूव की जाएगी। ओके, और एडिशनली ये कैश मेमोरी तो कम, मतलब कि उसका कैश मेमोरी की जो साइज़ होती है, क्षमता होती है, वो कम होती है, तो जगह बहुत ही छोटी होती है कंपेयर टू रियल मेमोरी। ओके, और दी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो क्या होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है और कैश मेमोरी में उसके फोल्डर्स या फाइल्स है, और डिवाइस को अगर मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, किसी और इम्पोर्टेंट या हाई प्रायोरिटी की एप्लीकेशन को कैश में कुछ जगह चाहिए, तो आपकी एप्लीकेशन से जुड़ी फाइल्स को इरेज भी किया जा सकता है बिना वार्निंग के। आपको बिना इत्तला किए आपकी फाइल्स कैश मेमोरी से रिमूव हो सकती है। स्टोरिंग पब्लिकली रीडेबल फाइल्स। अब देखो, सपोज़ कि आपकी एप्लीकेशन ने कोई सॉन्ग को डाउनलोड किया है। अब सॉन्ग को डाउनलोड किया है तो ज़्यादातर केस में तो ऐसा भी हो सकता है कि उस सॉन्ग को आपकी ही एप्लीकेशन प्ले करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सॉन्ग डाउनलोड हुआ है वो आपकी एप्लीकेशन से भी प्ले हो, और डिवाइस में जो म्यूज़िक से रिलेटेड अलग अलग एप्लीकेशंस है वहाँ पे भी एज अ म्यूज़िक ट्रैक वो फाइल दिखनी चाहिए। ओके, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि देखो, अगर आप म्यूज़िक की फ़ाइल को डाउनलोड करके आपकी एप्लीकेशन के प्राइवेट फोल्डर में रखते हो तो उस म्यूज़िक ट्रैक को केवल आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेस कर पाएगी, प्ले कर पाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि वो म्यूज़िक ट्रैक कहीं भी दिखे,
जहाँ पे म्यूज़िक की एप्लीकेशन हो वहाँ पे वो प्ले हो सकना चाहिए। एज वेल एज अलार्म की एप्लीकेशन है, वहाँ पे अलार्म टोन सेट करना है तो भी वो लिस्ट में आना चाहिए। डिवाइस में रिंग टोन सेट करना है तो वहाँ पे भी वो लिस्ट में आना चाहिए। तो अगर आप डेटा को इस तरह से रखना चाहते हो तो उस डेटा को आपको पब्लिकली रखना चाहिए। डिवाइस में ऐसे पब्लिकली फ़ोल्डर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक का पब्लिकली फ़ोल्डर। तो उस पब्लिकली फ़ोल्डर में आप अगर इस डाउनलोड की गई MP3 फाइल को रखते हो तो डिवाइस में जितनी भी सॉन्ग से जुड़ी या MP3 से जुड़ी एप्लीकेशन से हर एक को वो दिखाई देगी। ओके, तो कुछ केसेस ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे आप पब्लिकली फाइल को स्टोर करना चाहोगे। Android provides a storage where users can place and manage files of each type. This mechanism can be useful when our application provides functionality that can replace system applications. तो हम पब्लिकली फ़ोल्डर को एक्सेस करके, जैसे कि हमने सॉन्ग प्ले करने की एप्लीकेशन बनाई है तो सारे सॉन्ग्स पब्लिकली फ़ोल्डर में होते हैं, तो हम अगर उसको एक्सेस करें तो हम सभी तरह के डिवाइस में जितने भी म्यूज़िक ऑडियो ट्रैक्स है उसे एक्सेस करके प्ले कर सकते हैं। The method used to access location get external storage public directory। तो देखो यहाँ पे जो मेथड है वो कॉमन है, get external storage public directory, और यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है स्ट्रिंग टाइप ऑफ द फोल्डर। ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड टाइप्स है, जैसे कि डाउनलोड्स है, म्यूज़िक है, वीडियो है, मतलब कि अलग अलग तरह के पब्लिक फोल्डर्स है जिसमें पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स स्टोर की जाती है, सेव की जाती है। तो अगर आपको म्यूज़िक से जुड़ा पब्लिक फ़ोल्डर चाहिए तो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वो म्यूज़िक के लिए जो नाम है वो देना पड़ेगा, वो नाम सभी प्री डिफाइन है। ओके, और आपको रिटर्न क्या होगा, फाइल का रेफरेंस। सी द आर्ग्यूमेंट टू दिस मेथड इज़ ए प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स विच कैन बी। तो यहाँ पे ये देखिए, आप जो भी पब्लिक फ़ोल्डर, ऐसे बहुत सारे पब्लिक फ़ोल्डर्स होंगे, जिस तरह का पब्लिक फ़ोल्डर आप रिट्रीव करना चाहते हो डिवाइस में से, तो उसका नाम ऐसे आर्ग्यूमेंट पास करना है आपको। और कौन कौन से नाम पॉसिबल है, डायरेक्टरी अलार्म्स से जुड़ा पब्लिक फ़ोल्डर रिटर्न होगा, डायरेक्टरी DCIM फोटोज़ से जुड़ा पब्लिक फ़ोल्डर रिटर्न होगा, डायरेक्टरी डाउनलोड्स जो सभी स्टोर होते हैं वो फोल्डर रिट्रीव होगा, डायरेक्टरी मूवीज़ से जुड़ा फोल्डर रिट्रीव होगा, डायरेक्टरी म्यूज़िक से जुड़ा फोल्डर, नोटिफिकेशंस से जुड़ा फोल्डर, और डायरेक्टरी रिंगटोन्स, डिवाइस में जितनी भी रिंगटोन्स है उससे जुड़ा फोल्डर रिट्रीव होगा। तो सपोज़ कि मुझे एक कॉमन म्यूज़िक फाइल रखनी है या मुझे म्यूज़िक प्ले करना है, तो मैं ये डायरेक्टरी म्यूज़िक को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ। ये प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट है, ओके, और ये एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, इसका स्ट्रिंग वैल्यू वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा नाम लिखने से। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल नेम इज़ इक्वल टू mymusic.mp3। ये सपोज़ मेरे पास कोई एक MP3 फाइल है जिसका नाम mymusic.mp3 है। फिर हमने, ये तो स्ट्रिंग वेरिएबल है, फिर हमने एक फ़ाइल का वेरिएबल बनाया पाथ environment.getExternal storage public directory। ये हमें क्या मिलेगा इस मेथड के द्वारा, SD कार्ड में, मतलब कि एक्सटर्नल स्टोरेज में पब्लिक डायरेक्टरी, कौन से नाम की, डायरेक्टरी म्यूज़िक, environment.directory म्यूज़िक। ओके, म्यूज़िक का जो पब्लिक फ़ोल्डर है SD कार्ड में, उसका रेफरेंस मेरे को मिलेगा। और देखिए इस मेथड को कॉल करते हैं हम एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा। शायद आपको याद हो, हमने पिछले कुछ वीडियो में डाउनलोड मैनेजर का प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें भी हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल जो था पार्ट 1, हमने उसमें इस मेथड का यूज़ किया था, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी, और आर्ग्यूमेंट में हमने डाउनलोड्स पास किया था। जो भी हो, यहाँ पे हमें म्यूज़िक की पब्लिक डायरेक्टरी का पाथ मिलेगा पाथ वेरिएबल में। फिर फाइल इज़ इक्वल टू न्यू फाइल, पाथ हमने पास किया और फाइल का नेम भी पास किया। तो ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसे रिफ़र करेगा, एक्सटर्नल स्टोरेज में आया हुआ म्यूज़िक का फोल्डर और उसके अंदर mymusic.mp3 फाइल, उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा, इस फाइल ऑब्जेक्ट में। फिर आप ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे path.make डायरेक्टरीज, तो ये पाथ जिसको रिफ़र करता है, अगर वो डायरेक्टरीज अवेलेबल नहीं है तो बन जाएगी, और फिर वहाँ पे हम फाइल को राइट कर सकते हैं, मतलब जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल स्टोरेज में किसी भी पब्लिक फोल्डर को एक्सेस करके वहाँ पे रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के द्वारा। ओके, तो ये था फाइल मैनेजमेंट के बारे में कि हम एंड्रॉयड में भी
फाइल मैनेजमेंट फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, दो वेरी रेयरली यूज्ड, इट इज़ अवेलेबल। और हमारी एप्लीकेशन में अगर हमें लगता है कि हमें फाइल हैंडलिंग का फाइल सिस्टम का यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं, वेरी सिंपल एंड ईजी, बट इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड, क्योंकि अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, large amount of data is there or the data is records, data are as records of some particular entity, then database is the best mechanism। और अगर डेटा जो है आपका जिसको आपको परमानेंटली स्टोर करना है वो क्लाइंट का प्रेफरेंस है तो शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ करो। ओके, हमने शेयर्ड प्रेफरेंस भी देखा था कि इंटरनली वो भी फाइल जैसे स्टोर होती है डिवाइस में, उसी तरह से शेयर्ड प्रेफरेंस का भी एक इंटरनली फाइल ही बनती है, जो हमने ओपन करके देखा था डिवाइस एक्सप्लोरर में कि वो एक XML फाइल है। ओके, जिसके अंदर मैप एंट्री होती है, मैप नोड होता है जिसमें की और वैल्यू होती है, क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस में की और वैल्यू होती है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो फाइल में, लेकिन इट इज़ नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड। फाइल मैनेजमेंट के से जो आपका डेटा स्टोर होता है वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। यू कांट इजीली क्वेरी और रिट्रीव द रिकॉर्ड्स इजीली। So very rarely used, but it is available and for small amount of data it can be useful। तो फाइल हैंडलिंग का भी यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, तो सपोज़ कि आपने किसी फाइल को डाउनलोड किया है और उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको उसे पर्टिकुलर जगह पे राइट करना है तो आपको फाइल मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर फाइल को पर्टिकुलर जगह पे राइट किया है फिर वहाँ से ओपन करके कुछ और करना है ऑपरेशन, तो अभी आपको फाइल मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए तरीके डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के। ठीक है।